1 Peter 5:8। अब आप जानते, अरे बट पास्टर हमें पता है वो परमेश्वर के लोग हैं। हाँ हैं, पर आप कौन हो? Oh, Pastor, we know they are the people of God. Who are you? आप कौन हो? Who are you? Oh, sorry. But you are a chosen generation. I'm just put that scripture. अब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आप कौन? आपको जानना है आज। What is the word of God saying? You have to find out. You have to असली इज़राइल परमेश्वर की नजर में कौन है? You have to know who is a true Israelite in the eyes of God. अरे असली इज़राइल आज कुछ इंडिया में है, कुछ चाइना में है, कुछ पैलेस्टीन में है, कुछ जॉर्डन में है, कुछ लेबनान में है, कुछ दुबई में है। जो न्यू क्रिएशन है वो नया इज़राइल है परमेश्वर की नजर में। The new creation is the new Israel in the sight of God. But you are a chosen generation. लेकिन तुम एक चुना हुआ वंश हो, A royal priesthood. एक राजपद धारक। First the royal priesthood came from the physical Israel. Now the royal priesthood is with the spiritual Israel. पहला राजपद धारक याजक इज़राइल से, शारीरिक इज़राइल से आया, लेकिन अब वो आत्मिक इज़राइल से आया है। Amen. अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, आपका आत्मा में खतना हुआ है और परमेश्वर कहता है ये यहूदी है। If you have received the Holy Spirit, you are circumcised in the Spirit, and the Lord says you are a true Jew. It's in your Bible. आपकी बाइबल में। But the traditional teachings, I mean, like मैं अभी इस टीचिंग के लिए तैयार नहीं है लोग काफी। I'll give slowly. धीरे-धीरे मुझे पता है बहुत सारा अटैक आएगा क्योंकि लोग रेडी नहीं है इस बात के लिए। A lot of attack will come because people are not ready for this. But I'm telling you, if the day you know who you are, जिस दिन आपको मालूम हो गया आप कौन हो। आप देखो आगे, देखो क्या लिखा है। A royal priesthood, a holy nation. एक पवित्र देश। A holy nation. एक पवित्र देश हो। कौन सा देश प्रभु? हम तो इंडिया में हैं, वो पाकिस्तान। अरे जो सारे विश्वासी जो आत्मा में हैं, परमेश्वर उनको एक पवित्र देश देखता है। All the new creation of God, God sees them as a holy nation. हाँ, रेडी हो? Are you ready? His own special people. उसके निज खास लोग। Hallelujah. Praise God. आगे देखो क्या लिखा है। His own praise, that you may proclaim the praises of him. अब तुम यहूदी हो, यहूदा का मतलब praise. You are ordained to reveal the praise of God to all the generations. कि तुम उसकी प्रशंसा करो, तुम वो यहूदी हो जो उसकी प्रशंसा करो सारे देशों के सामने। Yes, God will never forget his covenant with Abraham. हाँ, परमेश्वर कभी भी अपनी वाचा अब्राहम के साथ नहीं भूलेगा। But लेकिन if you think that a physical Jew has a more special place in God's heart, then you don't even know the gospel. अगर आपको लगता है कि एक शरीर से यहूदी जो है उसकी ज़्यादा खास जगह है प्रभु के दिल में, तो आपको सुसमाचार पता ही नहीं है। Hallelujah. इसीलिए बाइबल अब दो यरूशलेम की बात करती है, अर्थली यरूशलेम और हेवनली यरूशलेम। So the Bible now talks about two Jerusalem, जो पृथ्वी का जेरूशलेम है और जो स्वर्ग का जेरूशलेम है। Come on. Amen. क्या है heavenly Jerusalem? What is that heavenly Jerusalem? Again, I don't want to go into that, but just flowing, so I'll flow. What is heavenly Jerusalem? जब देखते हो रेवलेशन में नीचे आ रहे हो ऊपर से। क्या है heavenly Jerusalem which we read? It comes You from are the heavenly Jerusalem. आप हो वो स्वर्गीय Jesus said, जेरूशलेम। "You are the city set on the top of a hill." यीशु ने कहा आप वो शहर हो जो पहाड़ के ऊपर बसा गया। The church of Lord Jesus Christ is the heavenly Jerusalem. यीशु मसीह की कलीसिया वो स्वर्गीय जेरूशलेम है जो पृथ्वी से नहीं आई, जो स्वर्ग से उतरी है, दुल्हन। that which did not come from the earth, the bride that came from heaven.
एक दिन मैं सो रहा था और अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और मैं उठ गया और प्रभु ने मुझे बताया कि प्रभु ने अब्राहम को बोला अपने टेंट से बाहर आ, नीचे रेत को देख. One day when I was sleeping, the Lord woke me up and said, I told Abraham to come out of your tent and look at the sand on the. जैसे ये रेत के कण हैं वैसे ही तेरी संतानें भी होंगी. Just as the number of the sand particles, so will your children be. और फिर परमेश्वर ने कहा बाद में इन तारों को देख. And then the Lord said, look at the stars. जैसे ये तारे हैं वैसे तेरी संतानें भी. As the stars, so shall your children be. इट्स पवित्र आत्मा ने मुझे बताया ये प्रोफेटिक पिक्चर है. ये दो अलग अलग टाइप के लोगों के लिए कहा गया है. The Holy Spirit said this is a prophetic picture of two different kinds of people. जो रेत के कण हैं वो है शारीरिक यहूदी जो इजराइल में आज ज्यूज हैं. The sand particles represent the physical Jews in Israel today. जो तारे हैं वो है न्यू क्रिएशन जो विश्वास से अब्राहम की संतान है. The stars represent the new creation. There are the children of Abraham by faith. आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो डस्ट से आया वो डस्ट है, जो स्वर्ग से आया वो हेवनली है. He that came from dust is dust, but he that came from heaven is heavenly. सो जब परमेश्वर आज आपको देखता है तो वो देखता है तारे जो चमक रहे हैं स्वर्ग में. So when God sees you today, he sees those stars that are shining bright. हाँ? और तारा बोल रहा है अरे मुझे ना रेत का कण बनना है. And the star is saying, I want to be like that sand particle there. अरे प्रभु कह रहा है तुम्हारे थ्रू मैं ज्यूज के अंदर जेलसी डाल दूंगा. The Lord is saying, through you I will provoke the Jews to jealousy. We are called to provoke them to jealousy. हम इसीलिए चुने गए हैं कि उनको जलन से भर दे प्रभु के लिए. Put Romans 10:1. I want to show you something. Hallelujah. ध्यान सुनो क्या लिखा है यहाँ पे. Brethren, my heart's desire. कहाँ से कहाँ चला गया मैसेज पर. चलो बहते बहते चलते हैं. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. That means they are not saved. हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना, उन यानी कि इजरायलियों के लिए प्रार्थना ये है कि वे उद्धार पाएं. इसका मतलब उनको यानी उद्धार नहीं मिला. यहूदियों के पास उद्धार नहीं है. That means Jews do not have the salvation of God. क्योंकि अगर अब उन्हें उद्धार चाहिए तो उन्हें नम्र होकर यीशु मसीह के सामने अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा. Because now if they want salvation they have to humble themselves and come before the Lord Jesus. जो सैल्वेशन का मैसेज पहले शारीरिक यहूदियों के पास था वो सैल्वेशन का मैसेज अब आत्मिक यहूदियों के पास है. The message of salvation that was with the physical Jews first is now with the spiritual Jews now. और परमेश्वर का वचन कह रहा है अब मेरी नज़र में असली यहूदी वो है जिसका शरीर से खतना नहीं हुआ मगर जिसका आत्मा से खतना हुआ है. And the word of God now says, in the sight of God a true Jew is the one that is not circumcised in the body but the one circumcised in the heart. Amen. समझ रहे हैं आप लोग. अच्छा है आप वहाँ जाओगे, जाओ वहाँ आपको बाइबल विल कम अलाइव. Good if you go there, आप देखेंगे पर बाइबल की कहानी को. आप और ब्लेस नहीं हो सकते. But you cannot be more blessed by going there. हाँ वो और ब्लेस हो सकते हैं आपके आगे. They will be more blessed when you go there. Amen. जैसे जैसे आप जानते जाओगे मसीह ने आपके लिए क्या किया है ये सुसमाचार और ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल होता जाएगा. As you will keep knowing what Christ has done for you, this gospel will keep on becoming more and more beautiful. Amen. I am not a sinner saved by grace. मैं वो पापी नहीं जो अनुग्रह से बचाया गया है. I am a son redeemed by grace. मैं वो बेटा हूँ जो अनुग्रह द्वारा छुड़ाया गया है. Amen. आदम को भी परमेश्वर ने बेटा बनाया था. लूका 3:38 में लिखा है. God had made Adam his son. It says in Luke 3:38. आप जानते हो जो उद्धार परमेश्वर ने आपको कर दिया अब आप इसमें कुछ और नहीं मिला सकते. Do you know that the salvation that God has given to you, you cannot add anything to it now.
किसी ने मुझे एक शिक्षा बताई, ब्रदर अब आपको ना आपके जीवन में इसलिए कई बार चीज़ें नहीं होती, हमें ऐसे करके हमें कोर्ट ऑफ हेवन जाना है। मैंने कहा भैया ये हटाओ ये। Someone once told me a teaching that things are not happening in life because you have to do this